So I think we are live again, and okay. So, so the topic of the day, or I'll say the topic of the night, is traumatic injuries. So today we'll be discussing in and out of common traumatic injuries to the orofacial structure, especially related to dentoalveolar, and more focused on tooth fracture or tooth injuries. Okay, तो इट इज मोर ऑफ अ ट्रोमैटिक इंजरीज टॉपिक. ओके, तो जब भी कोई भी पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आता है किसी भी ट्रोमैटिक इंजरी के साथ, तो our first line of treatment after a brief history and consents and all, we have to give टेटनस इंजेक्शन, जो आज की डेट में वी मिस अ लॉट. तो कभी भी कोई भी ट्रोमेटिक इंजरीज का पेशेंट आएगा विच कैन हैव हिप्स लैसरेशन इन सैंड्स में हो चाहे रोड साइड में हो, जस्ट गिव tetanus injection as the first line protocol after a brief history, and then you have to start with, then you can proceed with your common findings. And very important, which I like to add during this when the patient comes in such scenario, is to take a brief हिस्ट्री. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपने इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर दिया, इमरजेंसी पेशेंट आया, आपने टेटनस इंजेक्शन दिया, वेल एंड गुड. बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोसीजर जस्ट टेक अ फोटोज. ओके, फोटोग्राफ लेंगे, एक्स्ट्राओरल इंट्राओरल. एक्स्ट्राओरल फोटोग्राफ्स टू चेक फॉर एनी ब्लंट ट्रॉमा ऑन द फेस, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकंड द इंट्राओरल फोटोग्राफ्स. इंट्राओरल फोटोग्राफ्स में क्या देखेंगे हम? विल चेक फॉर द लैसरेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट. cheek ka laceration, lip ka laceration, gums ka laceration, we have to focus on that. Then followed by clinical examination. Clinical examination, and while doing a clinical examination, you need to check a lot of small things which I'll be telling you. कि अभी जैसे हमारा फोकस मेनली इंट्राओरल पे है, ठीक है, बट अ लिटिल यू हैव टू रूल आउट फॉर द एक्स्ट्राओरल ऑल्सो, जैसे कि एंगल का फ्रैक्चर और जाइगोमैटिक का फ्रैक्चर. नाउ वी आर कंसिडरिंग कि कोई एंगल, कोई कॉन्डाइल, कोई मैंडिबल का कोई फ्रैक्चर नहीं है, इट इज जस्ट अ डेंटो एल्वेलर or a soft tissue trauma. So in such type of cases, how you will proceed, it is very important to notice. ठीक है, लैसरेशन देखा लिप का, उसको फर्स्ट एड दिया, बोले तो उसको बीटाडिन से रिंस करा, माउथ रिंस कराया, वेरी गुड. और सारे फ्रैक्चर्स जैसे मैंने बोला आपने रूल आउट कर दिया. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लैसरेशन, स्पेशली ऑन द लिप आफ्टर ट्रॉमा टू द टूथ, through a tooth. So what can happen, as we said, there could be a fracture of the tooth, maybe a partial fracture, a complete fracture, or even a soft tissue trauma, which I mentioned. And very important, these blunt traumas to the teeth will cause a lot of changes in the tooth, starting from concussion to avulsion. ठीक है, avulsion of tooth हमने पढ़ते हैं, सारा उसका मैनेजमेंट पढ़ते हैं, बट देर आर ऑल्सो लॉट ऑफ स्मॉल प्रोसीजर्स or small things which happen to the patient which we have to notice. अब हमने अच्छे से रूल आउट कर दिया सारी चीज. दिस इज दैट फोटो which is showing a piece of tooth, a foreign body basically for the lip, which has been uh, pushed inside the lip, and we tend to leave it most of the time when we have the such type of laceration. तो उसके लिए लर्निंग कैसी है? बिकॉज इफ इट इज वेरी deeply penetrated any foreign body or if any particles or even the toothpiece, we can take a radiograph. We can take a radiograph with minimum exposure, जैसे कोई भी रेडियोपैसिटी दिख जाए, to see such type of changes. Okay, very important before doing any first aid care to laceration. दैट इज को क्लीन करा आपने, सूचर करने से पहले पहले उसमें जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको रिमूव करने का. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस. अब जो डेंटो एल्वेलर, अब जो डेंटो एल्वेलर फ्रैक्चर्स हैं उनको आई जस्ट
Am I audible, guys? I think the slides are not changing, huh? One second, huh? I'll just check why the slides are not changing. Let me check. Okay, I'm audible. Fine, great. I think the video which is coming, it is a little slow, but no issues. ठीक है. तो अभी जैसे I was discussing, again I'll just repeat as I think you guys cannot see the slides just now. ठीक है, as you can see the slide, जब भी laceration injuries होगी, especially lip में और cheek में, just rule out any foreign body inside the soft tissue. Especially tooth piece is very common. If you see a tooth fracture, a tooth piece can get impacted into the soft tissue, which has to get removed. But before removing, we need to check where it is. So we can use a radiograph with a very low exposure so that the radiopacity can be seen and then you can locate the foreign body. ठीक है. So before doing any first line treatment for this laceration, we just need to clean it with betadine with a good rinse followed by sutures. Okay. चलो ठीक है. डेंटो एल्वेलर पे जैसे अब हम आए, तो डेंटो एल्वेलर फ्रैक्चर्स में क्या है, we need to first find whether there is a dental alveolar fracture, very important, and second वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे. रेडियोग्राफ इज अ वेरी गुड फीचर, बट क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हाउ द क्लिनिकल एग्जामिनेशन विल हेल्प, यू नीड टू फोकस गाइस. सबसे पहले इफ यू वांट टू चेक फॉर एनी डेंटो एल्वेलर फ्रैक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट इज टू चेक द मोबिलिटी ऑफ द फ्रैगमेंट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, व्हेन यू विल मूव द टूथ, द एंटायर फ्रैगमेंट विल मूव. ओके, so I'll not go into the depth because my focus of the topic is usually related to tooth trauma. ठीक है, तो इसको आप ऐसे रूल आउट कर सकते हैं. यू कैन टेक अ गुड IUPA और occlusal radiograph works wonders. You can also go with an OPG, and usually we manage such type of fracture with a arch bar which we can place and just immobilize the segment and fix it. Okay, chalo. So moving towards our main topic of the day, that is traumatic injuries to a single or multiple tooth. This is just a diagram which is showing an extruded two central incisors. Okay, तो traumatic injuries में सिर्फ soft tissue trauma नहीं होगा. We can have a tooth trauma in which the tooth will not get fractured, but the supporting structures will get affected. Okay, very important. Supporting structures में effect पड़ेगा. कैसे इफेक्ट पड़ेगा, इधर उनमें ब्लंट ट्रॉमा होगा जिसमें टूथ मोबाइल नहीं होगा, या फिर टूथ मोबाइल होगा, या फिर टूथ में भी डिस्प्लेस्ड एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, मीजियो डिस्टली, और समटाइम्स इंट्रूजन एंड समटाइम्स एक्सट्रूजन. ओके, तो नाउ व्हाट आई विल बी टेलिंग यू, आई विल टेलिंग यू ऑल द थिंग्स इंडिविजुअली so that if such type of patient comes, you can diagnose first of all and manage the patient according to the injury. ठीक है, हर एक इंजरी का एक सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है. फॉर एवरी इंजरी वी हैव अ डिफरेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. ओके, तो स्टार्टिंग विद द कॉमन इंजरीज व्हिच विल हैपन, दैट इज सबलक्सेशन, कंकशन, एक्सक्लूसिव लक्सेशन, lateral luxation and intrusive luxation, and very very important, avulsion. Because young patients between 6 to 10 years, you will find a lot of patients with this trauma with the avulsed tooth because the bone is very pliable. So tendency of trauma in such a way that tooth gets avulsed is very common. ठीक है, तो starting with the basic part, मतलब there was a trauma to our patient, and when the trauma was there, there was little laceration which you corrected with your common line and sutures and all. Then when you check the tooth, जब आपने दांत को चेक करा, it was first of all not mobile, very important. It was not displaced, very very important.
And third thing, which is very important, it is very much tender on percussion. So when with your index finger, when you will be just touching the tooth also, the tooth will have pain, guys, a lot of pain. Okay, are you with me, guys? Are you with me, guys? I want comments in the comment box so that I know you are with me. I'll just wait for a few seconds before starting the powerful session on different injuries to the tooth and the supporting structures. Okay, okay. I think the video is a little slow. Yeah, great. तो तो ओके ओके ओके, ठीक है, ग्रेट. तो कंकशन इंजरी चालू करते हैं. ओके, कंकशन इंजरी चालू करते हैं. तो कंकशन में बेसिकली हो क्या रहा है? ग्रेट ग्रेट, आई कैन सी यू गाइस. तो कंकशन इंजरी में क्या हो रहा है? ट्रॉमा हुआ टूथ को, पर टूथ मोबाइल नहीं हुआ, टूथ डिस्प्लेस नहीं हुआ. जस्ट ट्रॉमा की वजह से टूथ के जो पेराडोंशियम है, स्पेशली द पेराडोंटल लिगामेंट, वहां थोड़ा हेमरेज हुआ. दैट्स इट. Only the tooth will be very tender on percussion and there will be no other features. ठीक है. तो इस कंडीशन में क्या करने का आपको? इस कंडीशन में जब आपने सारा एग्जामिन करा और रेडियोग्राफ लेने का है, व्हाई रेडियोग्राफ यू हैव टू टेक? बिकॉज समटाइम्स द टूथ मे बी लग्जेटेड बट क्लिनिकली इट मे बी सीन एज इफ इट इज नॉट लग्जेटेड. तो क्या करोगे आप लोग? रूट्स को देखोगे डीपली. यू कैन सी द रूट्स. You will see how the lamina dura is there. A little widening may be there, no issues, but the tooth should not be dislocated. मतलब एक ज्यादा बड़ी या फिर वाइड lamina dura नहीं, पेडोंटल स्पेस नहीं दिखनी चाहिए. मतलब कि टूथ और सॉकेट के बीच में स्पेस नहीं दिखनी चाहिए, हल्का फुल्का चलेगा. तो दिस इज द कंकशन इंजरी विच इज अ ब्लंट ट्रॉमा टू अ टूथ with no fracture, no mobility, no displacement. Okay. So as I told, not displaced, not mobile, TOP positive. So only care which you guys have to take is avoid any trauma to the tooth through the functional movement. You remember we were talking about incisal guidance, MIP. तो इस कंडीशन में ना MIP पे दांत टच होना चाहिए, that is lower incisor should be touching the upper incisor. For example, upper incisor में इंजरी है, तो we'll just grind it off so that MIP पे भी there should be no contact. Very very important. And second, in the you'll also avoid in the excursive movements. ठीक है, कोशिश करेंगे उसमें बिल्कुल भी फोर्स ना है, because now the tooth is traumatized in such a way that it will recover, क्योंकि उसमें कोई और डैमेज नहीं हुआ है, just a PDL टिश्यू का इन्फ्लेमेशन हुआ है. तो in such type of patient you won't take any pulp testing. थोड़ा मिक्स्ड रहेगा, जरूरत नहीं है. You can always take a pulp testing after 21 days after the trauma. Always remember, 3 weeks you can wait for any pulp testing to determine whether you have to go for a further treatment or not. But mostly in concussion injuries, nothing, no issues are there, just a little tenderness of the tooth, which usually subsides by around 2 weeks. Okay, so the basics of concussion is done. It's very similar to little trauma. Now we are moving to the higher level. So it can happen in one tooth, it can be a concussion injury which will be tender on percussion, but the other tooth can be a subluxation injury. अब ये एक थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल ऑफ इंजरी है. इसमें क्या होगा? इसमें जब टूथ को ट्रॉमा होगा, टूथ मोबाइल बहुत माइल्डली होगा, जैसे ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 करते थे ना, ग्रेड 1 मोबाइल यू कैन थिंक ऑफ. टूथ विल नॉट बी डिस्प्लेस्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टूथ विल नॉट बी डिस्प्लेस्ड. तो और हाँ, पीडीएल टिश्यू का डैमेज होगा, नो डाउट, उसमें हेमरेज होगा, नो डाउट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फाइन क्लिनिकल फीचर होगा, देयर विल बी ब्लीडिंग फ्रॉम द जिंजाइवल सल्कस. तो ये नेक्स्ट लेवल का ट्रॉमा है आफ्टर कंकशन, in which tooth will be very mildly mobile, grade 1 you can tell, and there will be a little bleeding from the gingival sulcus. The care which you were taking for the concussion injuries would be very similar. ठीक है, अभी तक हम किसी दांत में स्प्लिंट नहीं कर रहे हैं, अभी किसी दांत को रिपोजिशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशन से हटा ही नहीं है. We are just taking care to prevent any excursive, mainly MIP contacts, and we tell the patient not to bite from that side. That's it. Okay, so not displaced, a little mobility as I said,
ब्लीडिंग फ्रॉम द जिंजाइवल सल्कस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ब्लीडिंग होगी जिंजाइवल सल्कस से और टीओपी डेफिनेटली पॉजिटिव होगा. तो ट्रीटमेंट इज समवट सिमिलर, only the degree of trauma is little higher than the concussion. Now we'll be moving towards a more higher level in which the tooth is displaced. ठीक है, अभी तक सिर्फ पीडीएल को ट्रॉमा हुआ था, अब ऐसा ट्रॉमा है कि पीडीएल से एल्वेलस तक चले गए. तो वो कौन सा लेवल है? ठीक है, कंकशन, सबलक्सेशन. ठीक है, तो एज आई टोल्ड vitality will check after 21 days and follow up is very important. In such type of patient, follow up is important because we are not doing any treatment, we are just telling them not to bite on the tooth, or we are just we are grinding the opposing tooth in such a way there is no contact. तो ऐसे पेशेंट्स में vitality we can check after 21 days, very important if you want to check for the tooth is vital or not. And second, we'll have a follow up after 3, 6, 9 and 12 months. तो एटलीस्ट 12 महीने तक हम उसको फॉलो अप पे रखेंगे. अब हाँ, सीक्वल क्या हो सकता है, बिकॉज कंकशन में तो बहुत माइल्ड ट्रॉमा था, इसमें थोड़ा मोबिलिटी भी हुआ, बट एज आई टोल्ड, कोई भी इंजरी जब पेशेंट को होती है ना, इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द वीकर लिंक. फॉर एग्जाम्पल, इस पेशेंट में वीकर लिंक पीडीएल था एंड ट्रॉमा भी हो गया, तो सीक्वल कैन बी रूट रिजॉर्प्शन और एल से एनकोलॉसिस और पल्पल नेक्रोसिस. मतलब ये चीज हो सकती है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड और जो भी लिटरेचर कहता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विल रिकवर, देयर विल बी अ नो सीक्वल, मतलब कोई नेगेटिव सीक्वल नहीं होगा, इट विल बी फाइन. ओके, नाउ मूविंग टू अनदर लेवल ऑफ lateral luxation. Now guys, you can see the radiograph very clearly. You can see the tooth has come out from the socket. Okay, so in lateral luxation it can be luxated buccally, palatally, mesially and distally. Just see the radiograph, it is very important. In such type of injuries, you will take a radiograph to see how the root structure has been shifted from the socket, because most of the time the tooth may not be visible, the changes may not be that visible on the oral cavity as it is visible on the radiograph. ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ पेशेंट्स को पहले भी ओवरलैपिंग हो सकती है. एज द पेशेंट हैज कम फॉर द फर्स्ट टाइम, you need to take a radiograph to check how the tooth has been luxated. And now as the tooth is luxated, okay, so it is very important, we need to fix or reduce to its original position. Now look onto the radiograph and just look how the tooth has been displaced. ठीक है, ये 2D व्यू है, तो बक्कल, लिंगुअल, मीजियल, डिस्टल किसी भी तरफ हो सकता है. जस्ट सी द रेडियोग्राफ, आई विल बी बैक इन अ सेकंड. So as we are proceeding with a trauma in which now the tooth is displaced, so before that I want to ask you guys whether you have any doubt regarding luxation and concussion, anything regarding sequelae management or first line treatment or follow up. As I have explained everything, but still I think everything is clear. I can see good response. Okay, so moving on to another level in which I'll be explaining about. Now the patient has come with tooth displaced. Okay, so because the trauma is usually from the front, just imagine trauma is usually from the front. So what will happen? जो roots होगी ना, the roots will be displaced more buccally and crown palatally. ठीक है, तो कभी भी कोई भी टूथ का डिस्प्लेसमेंट होता है, आर वेरी important role is to fix or reduce it to the normal position. तो रेडियोग्राफी की आपने अभी देखा कि सॉकेट से टूथ बाहर आ गया, ठीक है, अब उसको
सबसे पहले जब आपने सारी चीज एग्जामिन करी, क्योंकि दांत टेंडर भी होगा, और व्हाट कैन हैपन, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर रिड्यूसिंग इट टू द नॉर्मल साइड, हाउ यू विल एग्जामिन द टूथ. You will check for the tenderness. Obviously, it will be tender. Mobility, in for example, in case of displaced injuries, most of the time the tooth root is impacted to a new bone level, due to which it will not be mobile. Okay, very important. तो वो एक तरीके से इम्पैक्ट हो जाएगा किस पे, बोन के लेबल कॉर्टेक्स पे, जो मोस्ट कॉमन है. तो अपना काम क्या है, उस इम्पैक्टेड टूथ की रूट को रीपोजिशन करना. रीपोजिशन करने के लिए यू कैन सी हाउ फाइनली दे आर होल्डिंग विद द on the label aspect of the bone along with the coronal aspect. We are pushing it, twisting it and repositioning it. So this is the way you can manage repositioning of a displaced tooth, because ज्यादातर वो रूट्स बक्कली होंगी और जो हमारी क्राउन की टिप है वो पैलेटली होगी. दिस इज अ वेरी इजी मेथड, वेरी सिंपल मेथड. यू कैन practice, you can directly try when the patient, if the patient comes with such type of trauma. ठीक है. तो जैसे मैंने बोला, डिस्प्लेस्ड हो सकता है इजीली, बक्कली, लैटरली, डिस्टली. gingival sulcus will bleed, okay, and the displaced and impacted tooth root will be into the new position. क्यों? क्योंकि वो इम्पैक्ट हो जाएगा और ट्रॉमा ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं वो फंस गया उसका रूट. तो उसको डिस्प्लेस जो हो गया है उसको हमें रिपोजिशन करना है. वो हमने देख लिया कैसे करते हैं. नाउ very peculiar thing which you will feel as the tooth has been locked into the bone or impacted into the bone, it will have a metallic sound. It's just a clinical feature. तो ये सारी चीज जब हमने देख ली, दांत displaced and all, now the most important part would be the management. पहली चीज, उसको जो impact हो गया उसे disimpact करना है with the maneuver which I told, with the help of thumb and your finger. ठीक है. और जब वो reposition हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे वो रिपोजिशन होगा, यू हैव टू टेक अ रेडियोग्राफ टू कंफर्म वेदर द रूट हैज कम टू द सॉकेट और नॉट. ठीक है. तो रेडियोग्राफ में जो आपने पहले स्पेस देखी, दिस विल डिसअपियर. ओके, इट विल बी लाइक दिस, अ लिटिल वाइडनिंग इज ओके, बट दिस बिग स्पेस विल डिसअपियर. दैट मीन्स द टूथ हैज बीन रीपोजिशन्ड. अब क्योंकि ये दांत डिस्प्लेस हो गया गाइस, जब डिस्प्लेस हो गया है, आपने रिपोजिशन करा, अब उसको फिक्स करना जरूरी है. फिक्स करना क्यों जरूरी है? बिकॉज नाउ देयर चांसेस दैट टूथ इज और कैन बी मोबाइल एंड अ मोर ट्रॉमा टू द टूथ कैन रिजल्ट इन फर्दर लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर. तो उसमें क्या करने का है हमको, उसको स्प्लिंट से उसको फिक्स करने का है. और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल टेक्निक how to do the splinting. ठीक है. if you have a ortho ligature wire, you can twist it and do with that also, or better I'll tell, normal ortho wire also you can use, or you can have a lot of flexible splints are available ready in the market. You just need to attach from canine to canine and just bond with your composites. And for example, if you don't have anything, just make a roll of composite and just attach. So these are the different ways which you can use for splinting of this type of tooth. And very very important is, splinting should not be more than 2 weeks. Okay, 7 to 10 days ideal है. और semi rigid होना चाहिए. Semi rigid क्यों होना चाहिए? क्योंकि semi rigid नहीं होगा तो tendency of tooth getting ankylosed is very high. And if you splint for more than 10 days, okay, I mentioned 2 weeks, but it is 7 to 10 days. If you splint for more than 10 days, what will happen? Chances of ankylosis will be much much higher. That's why semi rigid splinting and only for 10 days. ठीक है. तो जब भी ऐसा कैसी ट्रॉमा होगा, डिस्प्लेस को हमने रिपोजिशन करा, हमको स्प्लिंट देना ही देना है. और स्प्लिंट कितने दिन के लिए देना है? 10 दिन के लिए देना है. और साथ में एंटीबायोटिक्स भी देना है. कौन सा एंटीबायोटिक्स देना है? डॉक्सीसाइक्लिन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्सीसाइक्लिन फॉर 2 weeks. ओके, 100 mg is good enough. Okay. Up we have an injury which is very very common. कि tooth has been extruded from the socket. You can see the radiograph and you can see how the tooth is away from the socket. तो basically इससे पहले जो हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, उसमें देखा हमने वो बक्कली हो गया, मीजली हो गया, डिस्टली हो गया, पैलेटली हो गया. अब जो इंजरी है वो थोड़ी डिफरेंट है.
उसमें टूथ बाहर आ गया सॉकेट से, पार्शियली बाहर आ गया, ठीक है, पूरा बाहर नहीं आया, पूरा बाहर आने पे एवर्जन कहते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रूसिव लक्सेशन. इट्स वेरी सिंपल. एज वी डिड द repositioning of the lateral luxation, we'll do very similarly but very gently and slowly. Very very important. Whenever you are repositioning a extruded tooth, you have to apply a gentle, steady and slow pressure, because क्योंकि जब ये टूथ एक्सट्रूड हुआ होगा, लॉट ऑफ ब्लड वुड हैव फिल्ड द एम्प्टी सॉकेट, ठीक है, इन द ब्लैक स्पेस, और उसको जब आप पुश करोगे तो लॉट ऑफ प्रेशर विल बी अप्लाइड. तो डोंट अप्लाई हाई प्रेशर, स्टेडी प्रेशर, स्लो प्रेशर एंड ग्रेजुअली यू विल अप्लाई प्रेशर. तो दांत रीपोजिशन हो जाएगा अपने सॉकेट में. वेरी इजी, वेरी सिंपल. नाउ अगेन, एज इंजरी हुई है तो हमको रिपोजिशन करने के बाद इसको स्प्लिंट भी करना है, ठीक है गाइस. हाँ, तो अभी तक हमने जो लैटरल एक्सेशन में देखा, उसमें क्योंकि दांत इंपैक्ट हो गया तो मोबिलिटी ज्यादा नहीं होगी, मगर एक्सट्रूजन इंजरी में उसने सॉकेट से अपना दांत has been come out. So जब tooth has come out, obviously the mobility will be very high. So it is very close to a loose tooth or grade 3 mobile tooth. You just need to reposition into the socket, take a radiograph to confirm the position, and then splint it in a very similar way I told. We just have to splint from canine to canine. Good enough. You can do till premolar also if a lot of other tooths are involved. With any wire, good ortho wire, ठीक है? And with composite on the labial surface. You can splint the tooth with composite on the labial surface. It will work good. In 2 weeks, yeah, I'll say 7 to 10 days, splinting is good enough. ठीक है. अब add-on क्या है इसमें? Add-on ये है क्योंकि you know the tooth has been detached from the alveolus. So lot of chances are there that the tooth will go towards pulpal necrosis. ठीक है. जब टूथ पल्पल नेक्रोसिस पे जाएगा तो जाहिर सी बात है वी हैव टू गो फॉर सम ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट. दिस प्रोटोकॉल इफ यू फॉलो, द चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ दिस टूथ टू स्टे लॉन्गर एंड बैड सीक्वले इज लेस. ठीक है, लॉन्जिविटी बढ़ेगी दांत की, सीक्वले का जो बैड इफेक्ट है वो कम होगा. क्या करना होगा? विद इन 7 to 10 days व्हेन द स्प्लिंटिंग इज देयर, you have to do a access opening and root canal. Very very important. root canal start करने का है, access opening करके BMP करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ड्रेसिंग देने का है. और जब you gave a calcium hydroxide dressing, then you can follow with the obturation once the splint is removed. Again I'll repeat, very very important. After repositioning for 7 to 10 days, again it is written 2 to 4 weeks, but 7 to 10 days is good enough with the help of semi-rigid or flexible splint, as I have told you, with the help of composite. Antibiotic therapy, doxycycline, very important. First day BD followed by OD. 100 mg is good enough. And as I told, do RCT within 7 to 10 days followed by calcium hydroxide dressing. And once the splint is removed, you can follow up with the obturation. And then always follow 3 months, 6 months, 12 months to check for any root resorption. ठीक है, रिप्लेसमेंटल रिजॉर्प्शन. आई विल टेल यू व्हाट इज रिप्लेसमेंटल रिजॉर्प्शन आल्सो. ठीक है, तो अब ये हमारा क्लियर हो जाना चाहिए. कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी हुई जिसमें एक्सट्रूजन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एक कॉमन ट्रीटमेंट होगा कि रिपोजिशनिंग करा, एंटीबायोटिक थेरेपी चलाया, 10 डेज तक रिपोजिशनिंग करा, फॉलोड बाय रूट कैनाल विद इन द 7 to 10 days period, followed by calcium hydroxide dressing, and once we remove the splint, you can do with obturation. This is a very simple protocol to follow in such type of patients. Okay, तो कंकशन में रूट कैनाल नहीं किया, लक्सेशन में रूट कैनाल नहीं करा, सब लक्सेशन में आप 21 डेज तक ऑब्जर्व करने का सोच सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस विल गो फॉर रूट कैनाल. बट एक्सट्रूजन, इंट्रूजन जिसमें ट्रॉमा बहुत ज्यादा होगा पीडीएल को, उसमें आपको करना ही करना है. ठीक है गाइस, नाउ आई जस्ट वेट फॉर योर क्वेरीज फॉर अ मिनट टू सी. कोई क्वेरी है किसी को? Treatment. Can you repeat the treatment? Okay. So I'll repeat the treatment. Concussion simple है, luxation simple है. अब हमारा आया lateral luxation और extrusion. दोनों का सेम ट्रीटमेंट है. जो दांत सॉकेट से बाहर आ गया है, जैसे एक्सट्रूजन में जिसमें दांत बहुत ज्यादा मोबाइल हो जाएगा,
और दूसरा लैटरल एक्सेशन में, जिसमें टूथ विल बी इम्पैक्टेड यूजली लेवली, मतलब रूट लेवली होगी, क्राउन पैलेटली होगा, उसको रिपोजिशन करना है सॉकेट में। ठीक है, कैसे करना है, आई विल शो यू अगेन, वेरी सिंपल। हाँ, lateral extension has been occurred, tooth is impacted in the new socket. Now you will just do this finger movement with your thumb and index finger to reposition it. जब ये reposition हो जाएगा, बस उसको हमने एक splint से, splint बोला था, with a wire, ortho wire works good, with fiber splints which are available in the market works good, and also if you don't have anything, ligature wire होगी, नहीं तो what you can do, you can use a composite, just roll it on your palm and just apply like a rope on the label surface and cure it, following all the protocols of etching bonding. ठीक है, it also works good. तो these are the few steps which can be used, और वो दोनों के लिए सिमिलर है, एंटीबायोटिक थेरेपी, रिपोजिशनिंग एंड रूट कनाल. तो आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट? ओके, आई थिंक इट इज क्लियर. ग्रेट, great. If still you guys have any query, you can ask me, because as my slides will proceed na, the level of treatment and procedure will differentiate, especially in the avulsion tooth case. ठीक है? Okay, I think you guys are getting it. Great. Chalo. Now proceeding to the. Before that, I like to tell you the sequelae also, right? तो बेसिकली इन टूथ का जब ये क्या कहते हैं ट्रॉमा होता है, एवरी टूथ विल नॉट सर्वाइव. ओके, एज आई टोल्ड यू ड्यूरिंग माय ओक्लूजन चैप्टर्स कि द वीकर लिंक यूजुअली इफ इज अफेक्टेड will be sacrificed. So in such type of injuries there are chances to get ankylosed. Ankylosed का मतलब PDL damage हो गया और there has been a fusion between the cementum of the root and the bone. ठीक है, like a implant जैसे when we place it doesn't have a PDL, and when we do a tender and percussion a metallic sound will be appearing. You can hear. तो वही चीज exactly similar होगा. तो उसमें ये कॉमन सीक्वल है. और एक और चीज है पल्पल नेक्रोसिस, उसके लिए हमने ट्रीटमेंट कर दिया. एंड वेरी कॉमन वन मोर थिंग इज देयर, एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन एंड रिप्लेसमेंटल रिजॉर्प्शन. ये जो टर्म्स में बोल रहा हूँ ना, आई शो यू अ रेडियोग्राफ इन विच आई विल बी टेलिंग इन डिटेल. ठीक है, डोंट वरी. नाउ वी विल स्टार्ट विद द इंट्रूसिव इंजरी. अभी तक क्या है, दांत एक्सट्रूड हुआ, मोबाइल हुआ, आपने रिपोजिशन करा और स्प्लिंट कर दिया. अब थोड़ा उल्टा रहा, जो बहुत ज्यादा लेस कॉमन है. ठीक है, कि tooth have been again impacted apically. Guys, just imagine tooth has been impacted apically due to the trauma. क्योंकि children's में ना bone is very soft, तो tendency of tooth getting impacted apically or towards the long axis within the bone, it is very important to manage such type of cases in a very mild manner. You don't have to put a lot of force to allow the tooth to come out. Okay, तो इसमें लिटरली डैमेज क्या होगा, पल्पल डैमेज डेफिनेटली होगा, पेरिडोन्शियम डेफिनेटली होगा, क्योंकि टूथ पूरा इंपैक्ट हो गया है. द पेरिडोन्शियम हैज बीन क्रश्ड, द सप्लाई, द वैस्कुलर सप्लाई हैज बीन द नेक्रोज. बेसिकली इतना ज्यादा बुरी तरह वो इंपैक्ट हो जाएगा, जो उसका ब्लड सप्लाई भी हैम्पर होगा, पेरिडोन्शियम भी डैमेज हो जाएगा. अगेन द साउंड विल बी मेटालिक एज द टूथ हैज बीन एनकाइलोज्ड. ठीक है, तो बेसिकली इसका मैनेजमेंट क्या है? इसका मैनेजमेंट है बिकॉज वो सॉकेट में इंपैक्ट हो गया है, तो उसको ईदर वी कैन यूज वेरी फाइन इंस्ट्रूमेंट टू जस्ट स्लोली सर्जिकली let the tooth come to the occlusal level. You can see how they are repositioning the tooth. Or if you are an orthodontist or you know basics of ortho, you can do an orthodontic extrusion also. तो दो प्रोसीजर्स हैं दांत को वापस लाने के. either with finer instruments you can reposition the tooth, and obviously you will check with a radiograph, or you can apply these orthodontic repositioning appliances
which can allow the tooth to extrude. In few cases also come, that is also come at the level of occlusion when we do no treatment. ठीक है, body to body depend करता है, but usually we have to do some procedure to reposition the tooth. ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने मैनेजमेंट पढ़ा ना, सबका लगभग सिमिलर था. कोई भी इंजरी हुई टूथ की जिसकी वजह से वो उसका पेरिडोन्शियम इफेक्ट हो रहा है, या फिर रूट उसकी इम्पैक्ट हो रही है, या फिर रूट डिसलॉज हो रही है, या रूट एक्सट्रूड हो रही है, तो अपना एक सिंपल सा मेन एम है कि उसको रिपोजिशन करना है अपनी पुरानी पोजीशन पे. और जब भी रिपोजिशन करेंगे उसको पुरानी पोजीशन पे, विल रिड्यूस इट. रिड्यूस का मतलब उसको अपने लेवल पे लाने के बाद विल ऑल्सो फिक्स इट, मतलब उसको अपनी पोजीशन पे लाया, एक्सरे से कंफर्म करा, देन विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंट्स व्हिच आई एक्सप्लेन्ड यू, यू हैव टू कीप इट फॉर 7 to 10 days. अर्लियर वी यूज्ड टू कीप फॉर 2 to 4 weeks, बट नाउ वी नो दैट देयर आर वेरी हाई चांसेस कि अगर हम दांत को बहुत स्ट्रांगली रिजिडली स्प्लिंट कर देंगे तो एनकाइलोसिस के चांसेस होंगे. टू लेट द पेरिडोन्शियम ब्रीथ, टू लेट द पेरिडोन्शियम मूव, we need to splint only for 7 to 10 days, guys. It is very very important. Splinting not more than 10 days. और ट्रीटमेंट में जैसे ही आपने स्प्लिंट करा, विद इन आई से 7th day में पेशेंट को बुलाओ फॉलोअप पे, रूट कैनाल ओपन करो, डीएमपी करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ड्रेसिंग दो, छोड़ दो हफ्ते 10 दिन या 2 हफ्ते. और उसके बाद जब आप स्प्लिंट निकालते हो इन बिटवीन, उसके बाद यू कैन डू विद गो फॉर द ऑब्चुरेशन मेथड. वेरी सिंपल procedure to proceed after fixation. Okay, I think it is very simple. Now you can see very common treatment for almost all the teeth, and the antibiotic of preference is doxycycline for 15 days. Okay, 100 mg पहले दिन BD, क्योंकि उसका जो हाफ लाइफ मेंटेन करने के लिए we have to give twice. Then you can give OD, और फिर followed by follow-ups every 3 months, 6 months once you have obturated the tooth. Why follow-up is important? Because there are chances that there may be ankylosis or any root resorption which you need to take care if it happens. ठीक है, सर्जिकली रिपोजिशन करा, ओके, ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रूजन करा, ओके, समटाइम्स स्पॉन्टेनियस इरप्शन हो जाता है 2 to 4 weeks में. इट इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रंस बिकॉज बोन सॉफ्ट होती है, तो टेंडेंसी ऑफ या फिर इरप्टिव फोर्सेस होंगी, वो उसको इरप्ट होने में हेल्प करेगा. और सेमी रिजिड या फिर फ्लेक्सिबल स्प्लिंटिंग करेंगे, फॉलोड बाय रूट कैनाल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्रेसिंग एंड ऑब्चुरेशन आफ्टर स्प्लिंट रिमूवल, एंड ऑल्सो डॉक्सीसाइक्लिन. तो अभी हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी और मैंने सीक्वल की भी बात करी कि जरूरी नहीं है सारा एवरी टूथ द ट्रीटमेंट विल बी सक्सेसफुल, बट द थिंग्स व्हिच कैन हैपन इज एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन, रिप्लेसमेंटल रिजॉर्प्शन एंड काइलोसिस. ठीक है, तो यू कैन सी in this radiograph the root and the bone is literally fused. ठीक है, जब रूट और बोन फ्यूज हो रही है मतलब पीडीएल नहीं है, तो दांत एनकाइलॉस हो रहा है. एनकाइलोसिस से क्या होगा, जो भी हमारा एल्वियल बोन का हाइट बढ़ रहा है एनकाइलॉस टूथ पे नहीं बढ़ेगा. ठीक है, तो with this diagram I'll tell you the common sequelae of a traumatized tooth. आफ्टर दिस आई टेक अ ब्रेक, डोंट वरी. ये एक नॉर्मल रूट है, थोड़ा रिजॉर्प्शन है, इसमें देखो काफी रिजॉर्प्शन है, इसमें भी रिजॉर्प्शन है, इसमें भी रिजॉर्प्शन है, और ये external resorption है. Now guys, if you see this radiograph, it appears to be fine, a little resorption in the apex. Now if you see this consecutive x-rays, what you will see, the root is getting resorbed, very very important, and along with replaced by the bone. This is the term which is called as replacemental resorption. मतलब कि रूट तो रिजॉर्ब हो रही है और साथ के साथ बोन भी बन रही है. तो उसका मतलब क्या हुआ, जब ट्रॉमा हुआ टूथ को, तो जो उसके आसपास पीडीएल में जो सेल्स हैं उनमें क्या चेंजेस आया, उनमें ये चेंजेस आया कि नाउ दे आर आइडेंटिफाइंग द रूट पोर्शन ऑफ द टूथ लाइक अ बोन. और जैसे बोन में रीमॉडलिंग होता है, तो रीमॉडलिंग में क्या होता है, बोन रिजॉर्प्शन होता है, बोन डिपोजिशन होता है, रिजॉर्प्शन होता है, डिपोजिशन होता है. मगर रूट को में ये प्रोसेस नहीं होता है. बट आफ्टर ट्रॉमा देयर चांसेस दिस कैन हैपन एंड द रूट विल रिजॉर्ब बट द डिपोजिशन ऑफ बोन विल बी देयर. And we have seen a lot of ortho cases also in which the forces are very high कि उनमें ये ऐसा root resorption होगा और साथ में which is replaced by the bone. ठीक है, तो एक root resorption हुआ जिसमें we can see a radiolucency,
एक रूट रिजॉर्प्शन हुआ जिसमें रूट तो छोटी होती जा रही है पर वो बोन से रिप्लेस हो रही है, ठीक है. आई वांट टू नो वेदर यू गाइज आर विद मी. आई वांट कमेंट्स सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई कि आप लोग मेरे साथ हो, ठीक है. एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन, व्हाट इज रिप्लेसमेंटल रिजॉर्प्शन, ठीक है. एनकालोसिस तो सबको क्लियर है ही, ठीक है. बिकॉज ये सीक्वले है और ये सीक्वले हमें फॉलोअप्स में देखना है. देन ओनली वी कैन विल एबल टू नो कि वेदर हाउ द प्रोग्नोसिस ऑफ योर ट्रीटमेंट इज देयर. ऑलवेज व्हेन वी डू अ ट्रीटमेंट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ फॉलोअप सो दैट यू नो आपने जो आज किया वो कल कैसा है. ओके, ग्रेट ग्रेट. आई कैन सी द एनर्जी. यू ऑल आर विद मी. ग्रेट. तो डाउट्स नहीं है. नेक्स्ट लेवल, next level. This is the I'll say the key topic of my discussion, avulsion, ठीक है. This is very common especially in children between 6 to 10 years. okay, bone बहुत सॉफ्ट होगी क्योंकि कोई भी चीज सॉफ्ट होगी. ऑलवेज रिमेंबर जब ट्रॉमा होगा तो टूथ डिसलॉज नहीं होगा, वो एक फोर्स ऐसी लगेगी कि मतलब टूथ इंपैक्ट नहीं होगा और डिसलॉज होके बाहर आ जाएगा, ठीक है. स्पेशली व्हेन द बोन इज सॉफ्ट इन द चिल्ड्रंस. So you can see this diagram. The socket is empty and the doctor is holding the tooth with the hand, ठीक है. And he is holding the crown portion, ठीक है. See the socket. तो avulsion injuries में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कैसे भी ट्रॉमा avulsion हो सकता है, स्पेशली बच्चे जब खेल रहे हैं और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट और द जो भी उनके पेरेंट्स हैं आर कॉलिंग यू कि पेशेंट का ऐसे टूथ डिसलॉज हो गया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दे शुड कीप दिस टूथ इन एनी मीडियम. बेस्ट इज हैंड्स बैलेंस ब्रॉथ मीडियम, पर वो पेशेंट को पता नहीं होगा तो यू कैन आस्क देम टू कीप दैट टूथ इन मिल्क. वेरी इजीली अवेलेबल. यू कैन एटलीस्ट दे कैन एटलीस्ट कीप द टूथ इन मिल्क. क्यों? क्योंकि जैसे ही टूथ एवल्स होता है ना, जो पीडीएल अटैच्ड है, बेसिकली जो आपके टूथ के रूट पे जो पीडीएल अटैच्ड है, दे हैव टू बी केप्ट वायबल. मतलब अगर आपका टूथ एवल्स हुआ और जो पीडीएल रूट्स पे अटैच्ड है अगर उनमें लाइफ है तो आप वापस जब उसको सॉकेट में डालोगे द रिजल्ट्स एंड प्रोग्नोसिस विल बी गुड. तो द क्रिटिकल टाइम when the tooth should be repositioned into the socket is 15 minutes. I'll say a golden time. अगर पेशेंट विद इन 15 मिनट्स आ जाता है दांत लेके, इट इज द गोल्डन टाइम. यू कैन रिप्लेस इट इनटू द सॉकेट. कैसे सॉकेट से रिप्लेस करेंगे? वील ऑलवेज प्रिफर कि विद इन 15 मिनट्स आए तो आपके पास हैंड्स बैलेंस ब्रॉथ मीडियम हो, नहीं तो एटलीस्ट सलाइन हो या फिर एटलीस्ट मिल्क हो. तो उसपे अगर हैंड्स बैलेंस ब्रॉथ मीडियम इट इज वेरी इजीली यू कैन मेड इट. इट्स बेसिकली कॉम्पोजिशन इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम. इसका एक मिक्सचर होता है थोड़े से ग्लूकोज में, ठीक है. उसको हमने उसमें डिप करने का है, दैट्स डिप करके सोक करके रखने का है और सोक करने का वी कैन प्लेस इट इन द सॉकेट. मगर हमारे क्लिनिक्स में फॉर एग्जांपल हैंड्स बैलेंस ब्रॉथ मीडियम नहीं है तो वी कैन यूज मिल्क, यू कैन यूज सलाइन, बट अवॉइड यूजिंग सलाइवा एंड वाटर. क्योंकि सारा जो खेल है ना बेसिकली टूथ को बचाने का वो पीडीएल पे डिपेंडेंट है. तो किसी भी मीडियम में जिसका पीएच आपकी बॉडी की पीएच से मैच करेगा या फिर जो पेडोंशियम के पीएच से मैच करेगा या ऑस्मोलैरिटी मैच करेगी, दैट विल बी फाइन. क्योंकि अगर आपने वाटर में रखा तो वो हाइपोटोनिक है, सलाइन इज ओके, मिल्क इज गुड, हैंड्स बैलेंस ब्रॉथ मीडियम इज बेस्ट, ठीक है. तो हमें बेसिकली जो उसके रूट्स में पीडीएल है उसको अलाइव रखने का है, ठीक है. अगर 15 मिनट्स तक आया इट इज द बेस्ट. The prognosis will be best. You just have to place in the socket and splint how we used to splint the other tooth. ठीक है. तो अब सॉकेट में है मगर ड्यूरेशन जैसे मैंने बोला इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू एनी रीजन पेशेंट केम अ लिटिल लेट. He came somewhere around 45 minutes after the avulsion of the tooth. Guys, still you can reposition the tooth. Only the protocols will differ. अब प्रोटोकॉल क्या होगा? क्योंकि चांसेस हैं कि पेडोंशियम जो हमारा पीडीएल है वो ऑलमोस्ट
almost, not fully, almost it may be non-viable. So, but still, if we have that Hank's balanced broth medium, उसके अंदर we can keep it for at least 10 to 15 minutes, ठीक है, and then also we can reposition. It is up to 2 hours, ठीक है. अगर 2 hours बाद आया पेशेंट तो now the PDL will be dead definitely. 2 घंटे से ज्यादा आपके PDL अलाइव नहीं रह सकते, ठीक है. तो उस टाइम क्या करना है, बिकॉज दैट PDL आर डेड and dead PDL will act as a foreign body. You need to rinse the tooth in sodium hypochlorite, followed by stannous chloride, and followed by doxycycline. तो मतलब अभी हमारा मेन एम होगा कि हम रूट को स्क्रब करेंगे इन सॉल्यूशन से, जैसे जो भी डेड PDL हो वो हम क्लीन कर दे. सी, if this tooth comes after 2 hours, that means the PDL is dead. No need of using Hank's balanced broth medium, milk or saline. Okay, you just need to rinse the tooth root or scrub the root to remove all the PDL with with stannous chloride and with doxycycline solution 5%. Simple. Hypo से अच्छे से सारी सॉफ्ट टिश्यू डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है. एंड विद stannous chloride also, stannous chloride and doxycycline basically will help to prevent any I'll say bacteria जो हमारी रूट्स पे आ गया हो और जो बाद में प्रॉब्लम्स करे, ठीक है. ये सारी चीज यू नीड टू टेक केयर, ठीक है. तो आइडियल सॉल्यूशन एज आई टोल्ड, हैंड्स बैलेंस ब्रॉथ मीडियम, मिल्क सलाइन इज गुड. क्रिटिकल टाइम 15 मिनट्स और 15 to 2 hours सोक करेंगे उसी मीडियम में. Hank's balanced broth medium or milk is also fine. And then after 2 hours अगर आता है, मतलब PDL dead है, सोक करो हाइपो में up to 30 minutes. If you are just soaking is 30 minutes is a long duration. So what you can do, you can scrub the root also, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है, सारे PDL को रिमूव करना और साथ में स्टेनस फ्लोराइड और डॉक्सीसाइक्लिन से उसको सोक करना at least 5 minutes. Now the root is disinfected, clean, and you can put in the socket, ठीक है. तो आफ्टर 2 hours also you can put the tooth back in the socket. Only our need is कि जो आपका पेशेंट आएगा वो टूथ लिया है बस, ठीक है. तो अब ये कॉमन ट्रीटमेंट रहा मोस्ट ऑफ द केसेस का. अब इस पेशेंट में भी यू विल गिव डॉक्सीसाइक्लिन फॉर 2 weeks, ठीक है. फर्स्ट डे ट्वाइस डेली 100 mg फॉलोड बाय OD. Okay, follow up is very important. इसमें भी once you reposition, you have to take a radiograph followed by splinting. Very important. Splint करने के बाद you can start with antibiotic therapy and the same treatment which I told, ठीक है. अब what will be the difference? अब यही चीज एक मिल्क टीथ वाला पेशेंट भी आ सकता है, not only 6 to 10 years. For example, 4 years का बच्चा आया तो आप क्या करोगे? तो अगर वो दांत पूरा एवल्स हो गया है तो यू मे नॉट रिपोजिशन इट, ठीक है. जरूरी नहीं है रिपोजिशन करना पड़े. रिपोजिशन कर दो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी करते तो चलेगा. क्यों चलेगा? क्योंकि हमें पता है परमानेंट टूथ आ जाएगा और मोस्ट ऑफ द टाइम डैमेज नहीं होता परमानेंट टूथ बट का, ठीक है. तो दिस इज अ वेरी बेसिक मैनेजमेंट विच यू कैन अप्लाई इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस टू हेल्प दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स. आपको सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, रिपोजिशन करना टूथ को. दूसरी चीज उसको स्प्लिंट करना. अगर कॉम्पोजिट आपके पास है तो आप उससे भी स्प्लिंट कर सकते हो, नहीं तो फाइबर स्प्लिंट्स भी आते हैं, और नहीं तो एक ऑर्थो वायर हल्की सी क्लिनिक की होती है, उसको आप अटैच करके यू कैन पुट कॉम्पोजिट ऑन इट. और जस्ट फॉर 7 to 10 days. रूट कनाल सबको आता है. 7th डे रूट कनाल में एसेस ओपनिंग करा, 10th डे स्प्लिंट हटाने के 1 हफ्ते बाद आप उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. एंड जस्ट यू नीड टू फॉलो अप, दैट्स इट. उसके बाद and it's very important, if patient comes within 15 minutes, the chances that the PDL are alive and they'll stay fine is very high. 2 घंटे बाद अगर पेशेंट कराता है सारा ट्रीटमेंट तो चांसेस ऑफ एनकाइलोसिस इज वेरी हाई. एंड सेकंड, रिप्लेसमेंटल रिजॉर्प्शन, जैसे अभी हमने डायग्राम देखा, ठीक है गाइस. इसमें क्या हुआ, रूट छोटी हो गई और बोन बन गई, ठीक है. तो ये भी एक बहुत कॉमन सीक्वल है, बट अनफॉर्चुनेटली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. Because now the tissues of root of the tooth are being identified as a
रिमॉडलिंग, जैसे बोन में रिमॉडलिंग होता है वैसे रूट में रिमॉडलिंग हो रहा है, और वो रूट को रिजॉल्व कर रहा है जैसे बोन को रिजॉल्व करता है, पर बोन रूट रिजॉल्व होने के बाद रिप्लेस सिर्फ बोन से ही होगी. So these are the unfortunate patients in which the treatment is not easy. मतलब any treatment which you do, very less chances are there कि the root resorption will stop. So in such type of patient, you can just wait and watch. Okay. So these are the things which you need to take care. टाइम पे रूट कनाल करने का है और टाइम पे ऑब्जर्वेशन करने का है. ठीक है, ये मीडियम हो गया. ठीक है, सेमी रिजिड. तो सीक्वले जैसे मैंने बताया सबका ये है. तो आई थिंक नाउ द बेसिक्स ऑफ मैनेजिंग सच ट्रॉमेटिक इंजरीज आर ओके फॉर यू गाइस. तो आपको पता है कंकशन में कुछ नहीं करने का है, लग्जेशन में कुछ नहीं करने का है, सॉरी सब लग्जेशन में कोई भी लग्जेशन इंजरी हुई जिसमें दांत की पोजीशन बदल गई है, एक्सरे लिया, उसको रिपोजिशन करा, स्प्लिंट करा, विद इन 7th डे बुलाया, रूट कनाल करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, 10th डे उसका स्प्लिंट हटाया, फिर विद इन अ वीक उसको ऑब्चुरेट कर दिया, फिर जस्ट फॉलो अप किया. ओके, इज इट क्लियर गाइस? एवल्यूशन में बस ध्यान क्या रखना है कि वो जल्दी पेशेंट आ जाए, जैसे टूथ के पीडीएल बचे रहे, क्योंकि पीडीएल अगर बचेंगे तो प्रोग्नोसिस अच्छा होगा. पीडीएल नहीं बचे, फॉर एग्जांपल 2 घंटे बाद आया पेशेंट, तो यू जस्ट नीड टू रिंस द टूथ and make it disinfect the tooth and just put in the socket, but the chances are very high that the tooth will be ankylosed. So guys, of traumatic injuries in such type of patients are clear, and tomorrow we'll discuss crown and root fractures and the basic management. ठीक है, बेसिक मैनेजमेंट में जो आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो वो भी, और दूसरी चीज जो आपको जो भी एडवांस प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं आजकल की डेट्स में इन मैनेजिंग दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स. ओके, ऑल द मोनोब्लॉक इफेक्ट और द अदर एडवांस मटेरियल्स व्हिच आर यूजिंग, दैट इज एमटीए और बायोडेंटिन, विल बी डिस्कसिंग दैट. ठीक है, आई थिंक रात के लिए इतना नॉलेज काफी है. And now the benefit of the night sessions will be there. All the things which I'll be telling you, na, while you will be sleeping, it will be stored in your brain. Okay. So I think now I can sign off, and you guys can enjoy your night and have a nice sleep and wake up early. And tomorrow, same time, same place, we'll start our sessions on the minor crown and root fractures. Okay. Till then, bye bye. Take care. Still, अगर किसी को क्वेश्चन पूछने हैं, they can put in the comment box. I can wait for a minute. I think everybody has become smart. जब हमने पहले ही इतने हाई लेवल के टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, occlusion, TMJ और ओरोफेशियल पेन, now I think these things are very simple. हाँ सर, मैनेज हो जाएगा, रिपोजिशन और स्प्लिंट ही तो करना है. Great guys, I can see the energy. Great going. We'll start the session tomorrow at the same time. Bye bye. Take care.